Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So आज आपको आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है? I'll just try कि within 1.5 hour या within 2 hours मैं आपको भेज दूं असाइनमेंट, ठीक है? So TOC का असाइनमेंट है, राइट? मोस्ट प्रोबेबली उस असाइनमेंट में आपके क्वेश्चंस होंगे रेगुलर ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है? और DFA NFA, मतलब आपका जो भी है, आपका टाइप 0 ग्रामर जो है, सॉरी टाइप 3 ग्रामर जो है आपकी रेगुलर वन, वो होगा उसमें, ठीक है? ओके मैम। या सो आपने पढ़ लिया था सारा, रिवाइज कर लिया था ये? यस मैम। ओके, सो आज जो हमें स्टार्ट करना है, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एरर डिटेक्शन, राइट? एंड एरर डिटेक्शन में वी हैव स्टडीड कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन. So first one we have done simple parity, second we have done 2-dimensional parity. अब हमें थर्ड वाले से स्टार्ट करना है, that is your checksum. So checksum से पहले we'll study your CRC, that is cyclic redundancy check. Okay, so अब इसमें what happens is that कि this is also an error detection technique, ठीक है? So CRC or cyclic redundancy check is a method of detecting accidental changes or errors. So if somebody has made an error that is intentional, ठीक है? मतलब कि suppose the message was 100 and intentionally जानबूझकर message was sent as 001. So that is not what we are talking. But if there is an accidental change, accidental means कि कोई आपकी एक सिंगल बिट है वो चेंज हो गई, या कोई 2 बिट्स है वो चेंज हो गई. सो व्हेन यू हैव एक्सीडेंटल टाइप ऑफ एरर्स और चेंजेस, देन we use this cyclic redundancy check, that is a detecting method, ठीक है? So यहाँ पे CRC uses this generator polynomial. So very important, generator polynomial which is available on both the sender side and the receiver side. So basically है क्या, what is this generator polynomial? So generator polynomial basically is used in generator polynomial is basically used in order to find out कि जो आपका cyclic redundancy code है उसको वर्क कैसे कराना है, ठीक है? So क्या होता है कि you will be given a polynomial, ठीक है? So a polynomial will be given to you. So this is suppose the polynomial that is given to you. So polynomial is basically x cube plus x plus 1. So if I have to write this polynomial, I can with the help with coefficients, ठीक है? So how will I write? I will write it as 1x cube plus 0x square plus 1x plus 1. That is a constant, ठीक है? So x cube, x square, x raised to power 1, and this will become x raised to power 0. And anything to power 0 is already 1. So what will my generator polynomial become? The generator polynomial will become 1, that is this one, then 0. Why? Because the square, when x square is having the coefficient as 0, so 0, then you have 1 and you have 1. So you will take the coefficients. So with the help of these coefficients, you will form your generator polynomial. ये चीज समझ में आई? Yes मैम। ठीक है? So suppose let me just find a question. So if I say that your generator polynomial is x cube plus x square, so what will be your polynomial? अगर आपका polynomial ये दिया हुआ है कि x cube plus x square है, so आपकी की क्या बनेगी? किसी की तरफ
साउंड आ रही है, सो आई जस्ट म्यूट यू ऑल. ठीक है, चलो. ओके, यस. सो आंसर्स क्या आए हैं? 1-1. ओके, 1-1. नाउ एनीबॉडी एल्स? महेश आपका आंसर, पूनम आपका आंसर, आप लोग भी आंसर दो, देन आई विल डिस्कस. 1-1 मैम. एंड पूनम आपकी भी 1-1 है? Yes, ma'am. सी, ओके. अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे when you were having x cube plus x plus 1, you were not having x square, but still मैंने x square वाली टर्म ऐड की थी, right? So यहाँ पे भी similarly you have to add all the powers of x. So 1x cube plus 1x square plus 0x power 1 plus 0x raised to power 0. डिफरेंस समझ में आ रहा है? You have to take all the powers from यहाँ से जो आपकी पावर है up to 0, that is a constant. So आपका जो की आएगी वो आएगी 1 1 0 0. ये डिफरेंस क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So suppose अगर आपका एक और, अगर मैं आपको बोलूं कि your x5 plus x3 प्लस x, सो इस केस में आपका पॉलिनोमियल क्या बनेगा? की जो आपकी, ये तो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल हो गया, आपकी की क्या होगी इस केस में? 1 0 1 0 1. 1 0 आंसर आया है 1 0 1 0 1. 101. Yes, ma'am. सो ये हो जाएगा आपका 1 into x raised to power 5 plus 0 into x raised to power 4 plus 1 into x raised to power 3 plus 0 into x raised to power 2 plus 1 into x raised to power 1 plus 0 into x raised to power 0. x raised to power 0 क्यों भूल जाते हो? So it will be 1 0 1 0 1 0. समझ में आया? 0 क्या है लास्ट में? Yes. क्लियर हुआ? 0 क्या है लास्ट में एवरीवन? Yes, ma'am. कांस्टेंट जो है आपका, उसकी मतलब x रेज टू पावर 0 जो है आपको, वो भी तो लेनी पड़ेगी ना, राइट? Yes. ठीक है. अब अगर एक और मैं आपको एग्जांपल, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा. अब बताओ क्या आएगी आपकी की? वन जीरो जीरो 101 मैम. 1 0 0 1. 1001. ओके, सो x5 की पावर कौन, वो आपका कोएफिशिएंट 1 है, सो हो गया. x4 यहाँ पे नहीं है, सो वी विल राइट इट एज 0. x3 यहाँ पे नहीं है, सो वी विल राइट इट एज 0. x2 है, सो 1 आ गया. x रेज टू पावर 1 नहीं है तो 0 हो गया, और फिर x रेज टू पावर 0 है तो 1 आ जाएगा. 1 2 1 0 0 1. यहाँ पे डबल 0 क्यों आ रहा है कीर्ति आपका? 1 and x. Ma'am, x raised to the power 0. Because missing x is रेज टू that. पावर 0 तो ये हो गया ना. Okay. x रेज टू पावर 0 को आप 1 लिख सकते हो ना. सो यहाँ पे हम जो हमारा अगर कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इट एज 1 into x रेज टू पावर 0. यस और नो? सो ये आपका x रेज टू पावर 0 हो जाएगा. सो 1 into 1 आपका 1 ही देगा आपको. यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट हो, 2 into x रेज टू पावर 0, सो तो भी आपका 2 हो जाएगा. बट यहाँ पे आपके 2 होगा नहीं. व्हाई? बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट इन फॉर्म ऑफ बाइनरी ओनली. तो 1 होगा या 0 होगा. सो अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है मतलब कि x रेज टू पावर 0 ही है वो. क्लियर हुई चीज? Yes, ma'am. सो एक और मैं देती हूँ आपको. n सही आना चाहिए इस बार सबका आंसर. अब बताओ क्या होगा इसका की, क्या होगी इस वाले पॉलिनोमियल की?
1000110 मैम। ओके चलो देखते हैं। तो 6 है आपका, तो 6 1 हो गया। देन 5 वाली पावर नहीं है तो 0, 4 वाली पावर नहीं है 0, 3 वाली पावर नहीं है 0। देन वी हैव 2, सो 2 आ गया। फिर आपका 1 भी है, 1 भी आ गया, और 0 वाली पावर नहीं है, सो 0। करेक्ट, यही आ रहा है सबका? Yes, ma'am. करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, सो दिस इज हाउ यू विल डू दी क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अब हमने वी हैव लर्नड कि ओके इफ पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस, सो हाउ वी विल जनरेट द की फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। सो दिस पॉलिनोमियल इज योर जनरेटर पॉलिनोमियल। अब आगे व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू? सो n is basically the number of bits, ठीक है, जो आपको भेजना है from your, you are the sender, so you are sending n bits data, ठीक है, and k number of bits is basically the bits that are obtained from the generator polynomial. So if this is the key, ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी 1011 is key, so what is the value of k over here? If 1011 is your key, what is the value of k? K cube, ma'am. k बेसिकली है नंबर ऑफ बिट्स इन द की। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 4। कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 बिट्स हैं। Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. एवरीवन क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? n हो गया अगर आपका बिट, अगर आपको सेंड करना है, सपोज यू आर सेंडिंग 1001, अगर आप ये भेज रहे हो, दिस इज द डेटा दैट यू वांट टू सेंड, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n हो जाएगा आपका 4, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स जो आप भेज रहे हो अपने डेटा में, और k हो गया आपका नंबर ऑफ बिट्स जो आपने की जनरेट की है जनरेटर पॉलिनोमियल से, उसमें कितनी बिट्स हैं वो हो गया आपका k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर साइड पे कुछ वर्क होता है और रिसीवर साइड पे कुछ वर्क होता है। सो व्हाट इज इट? सबसे पहले सपोज कि आपका, इफ आई टेक एन एग्जांपल, जस्ट एक मिनट, ओके। सो सपोज जो डेटा है जो सेंडर को भेजना है, ठीक है, द डेटा, इसको यहाँ पे जनरली डेटा बोलते हैं। सो इफ सपोज योर डेटा इज 10110, ओके। सो अगर डेटा आपका ये है, सो हाउ मेनी बिट्स, n कितने बिट्स हो गई? n इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 5, ठीक है। अब आपकी जो जनरेटर पॉलिनोमियल की है, सी मेनी टाइम्स या तो वो आपको पॉलिनोमियल देंगे, या हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली क्या दे दे, डायरेक्टली वो आपको दे दे की। सो यहाँ पे द की दे हैव गिवन इज 100। सो k की वैल्यू कितनी हो गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 3, ma'am. 3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि जो जनरेटर पॉलिनोमियल की है दैट इज 100, दैट इज 100, सो क्या आप इस की से पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हो? Yes. क्या पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा इस की से? Yes, ma'am. क्या होगा पॉलिनोमियल? From x square. सी यस, ये हो गया आपका x रेज टू पावर 0, ये हो गया x रेज टू पावर 1, और ये हो गया x रेज टू पावर 2। सो x रेज टू पावर 2 की कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, सो पॉलिनोमियल हो गया आपका x स्क्वायर। क्लियर है? एनीबॉडी डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो। ठीक है, ओके। सो अब आपका ये हो गया, यहाँ पे दे हैव गिवन यू पॉलिनोमियल की दैट इज 100, सो आपका k हो गया 3। सो व्हाट दे आर सेइंग, द बाइनरी डेटा, जो आपका बाइनरी डेटा है दैट इज दिस डेटा इज फर्स्ट ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब एडेड, मतलब ऐड करना है, ठीक है, इज फर्स्ट ऑगमेंटेड बाय एडिंग k-1 zeros। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा जो है दैट इज योर 10110, ये आपका डेटा हो गया, देन यू हैव टू ऑगमेंट, यू हैव टू यहाँ पे आगे आपको ऑगमेंट मतलब ऐड करना है k-1 zeros। k-1 मतलब कि जितने बिट्स आपकी k में है उससे एक बिट कम, दैट इज अगर आपकी k की वैल्यू 3 है,
सो यहाँ पे कितने जीरोस ऐड करोगे आप? 2 ऐड हो जाएंगे, राइट? Yes, ma'am. हम 2 कैसे? अरे सी, के की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 3। अगर के की वैल्यू 3 दी हुई है, यहाँ पे दे आर सेइंग कि यू हैव टू ऐड के माइनस 1 जीरोस, ऑगमेंट बेसिकली, नॉट ऐड, ऑगमेंट, ऑगमेंट के माइनस 1 जीरोस। सो के माइनस 1 जीरोस क्या हुए आपके? के माइनस 1 जीरोस हुए आपके 2 अब 2 हो गए। अब समझ में आया? सिर्फ आपको 2 जीरो यहाँ पे ऐड करनी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है? फिर व्हाट दे आर सेइंग यूज मॉड्यूलो 2 बाइनरी डिवीजन, मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, बट मॉड्यूलो 2 बाइनरी डिवीजन बेसिकली आपको एक्सॉर करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपका पॉलिनोमियल आया है, दैट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल से इस डेटा को, जो आपका फाइनल डेटा जो जनरेट हुआ है, सो आपको ये याद रखना है, जो फाइनल डेटा होगा आपका, जो कोड वर्ड, जिसको आप कोड वर्ड बोलोगे, ठीक है? सो इफ आई जस्ट सो जो आपका कोड वर्ड होगा, जिसपे आपको पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज योर कोड वर्ड। सो कोड वर्ड इज इक्वल टू डेटा प्लस योर CRC बिट्स। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे हम, सो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो व्हाट दे आर सेइंग कि अब आपको इसमें मॉड्यूलो 2 दैट इज एक्सॉर परफॉर्म करना है, और फिर आपका जो डेट लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको ऐड करना है। अब कैसे? अब लेट्स डू फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको बता दूं, ठीक है? सो सपोज जो आपको डेटा दिया है दैट इज 10110, ठीक है? और जो आपको जनरेटर पॉलिनोमियल दिया है दैट इज x3 प्लस x स्क्वायर, ठीक है? सो पहले तो आप मुझे बताओ कि डेटा में n कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, 5 ठीक है? अब ये बताओ k जो बनेगा आपका, वो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू के लिए पहले आपको ये की निकालनी पड़ेगी। सो बताओ इसकी वैल्यू, इसकी की क्या बनेगी आपकी? अभी कैलकुलेट करिए हमने, x3 प्लस x स्क्वायर है, तो आपकी जनरेटर पॉलिनोमियल की क्या बनी? 4 मैम। आपकी k की वैल्यू 4 हो गई, करेक्ट, बट जो की बनी वो क्या बनी? 1100, ठीक है? सो ये हो गया आपका। अब आपका स्टेप 1 क्या बोल रहा है? स्टेप 1 बोल रहा है फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अपेंड। सो आपका जो कोड वर्ड हो गया बेसिकली वो क्या हो जाएगा? दैट इज डेटा, क्या है आपका? 10110, और कितनी बिट्स ऐड करनी है? ऑगमेंट कितनी बिट्स करनी है? k -1 दैट इज 3। तो आप 3 जीरोस ऐड कर दोगे। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू परफॉर्म मॉड्यूलो 2 बाइनरी डिवीजन, दैट इज एक्सॉर। अब एक्सॉर किससे करता है? सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर 1100, दैट इज आपका जनरेटेड पॉलिनोमियल, एंड यू विल राइट 10110 एंड दीज 3 zeros. सो बेसिकली आपका जो जनरेटर पॉलिनोमियल होगा, इट विल वर्क एज अ डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, दैट इज द वन हु डिवाइड्स। तो ये आपका डिवाइजर हो गया, कोड वर्ड आपका डिविडेंड हो गया, और बाकी अब आप क्वेश्चन कुछ नहीं, अब सिंपली यू हैव टू परफॉर्म द एक्सॉर। सो सी, यहाँ पे आप लिखोगे 1100 एंड इसका एक्सॉर करोगे। एक्सॉर पता है ना आप लोगों को? एक्सॉर की वो पता है ना टेबल क्या होती है एक्सॉर की? अगर 1 है सो रिजल्ट क्या आता है? 0 मैम। 0। अगर 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 अगर 1 है 1 1 और 0 है 1 ठीक है? अगर सेम है तो 0 आएगा और डिफरेंट है तो 1 आएगा। सो अब बताओ यहाँ पे 10 will give you what? 1 10 will give you 1, 01 will also give you 1, और ये आपका क्रॉस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? फिर you will take this 0 down. अब again you will perform XOR here, so it is 1100. So 00 क्या हुआ? 0, 10 क्या हुआ? 1, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 0 हो गया, ठीक है?
फिर आपने ये 0 लिया, ठीक है, ये आपका 1 टाइम हुआ, ये आपका 1 टाइम हुआ, अब आपने 0 लिया। बेसिक डिवीजन में भी अगर आप, ये आपका इससे एक्सॉर नहीं हो सकता बिकॉज ये 3 डिजिट्स हैं और ये 4 डिजिट्स हैं। सो यहाँ पे आप एक 0 लिखोगे और एक और 0 को नीचे ले आओगे, ठीक है। सो अब दोबारा से 1 टाइम आप लेके जाओ, 1 1 0 0, अगेन एक्सॉर परफॉर्म करना है। सो 0 0 0 1 विल गिव यू 1 एंड क्रॉस, फिर ये 0 आप नीचे ले गए और यहाँ पे आपने 1 टाइम दोबारा किया। सो 1 1 0 0 आपका जो आएगा दैट इज 0 0 1। सो आपका रिमाइंडर क्या आया? 1 0 0। 1 0 0। हमेशा ध्यान रखना जो रिमाइंडर होगा ना, जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो इन बिट्स के इक्वल ही होंगी, मतलब जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी, अगर आपने 3 बिट्स अपेंड करी है सो रिमाइंडर में भी 3 बिट्स ही आएंगी। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, बेसिक एक्सॉर आपने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब ओके, अब आपका जो थर्ड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में बेसिकली व्हाट यू विल डू इज, अब आपका जो डेटा वर्ड था, डेटा वर्ड क्या था आपका? 1 0 1 1 0 एंड 3 टाइम्स 0। सो 1 0 1 1 0 और 3 टाइम्स 0, इसमें आप इस रिमाइंडर को ऐड कर दोगे। सो इट विल बी 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। सो ये जो आपका, ये जो कोड आया, ये जो कोड वर्ड आया, ये जाएगा रिसीवर के पास। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये चीज हुई सेंडर के एंड पे। अब रिसीवर के एंड पे रिसीवर को यही मिला, सपोज सो रिसीवर को मिला 1 0 1 1 0 1 0 0। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि रिसीवर जो है, अगेन रिसीवर को जनरेटर पॉलिनोमियल पता होगा। व्हाई? बिकॉज अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हो, सो इट वाज रिटन ओवर हियर कि जनरेटर पॉलिनोमियल इज अवेलेबल ऑन बोथ द सेंडर साइड एंड द रिसीवर साइड, ठीक है। दोनों को पता है कि जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है। सो रिसीवर आल्सो नोस कि जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है, दैट इज 1 1 0 0। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि रिसीवर विल अगेन परफॉर्म द एक्सॉर ऑन दिस कोडवर्ड जो उससे रिसीव हुआ है। सो नाउ अगेन करो, इसका आप करो, पूरा करो और मुझे बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है। इसको आप परफॉर्म करो, तब तक आई जस्ट आई हैव टू डू वन थिंग, सो आई एम जस्ट स्टॉप, आई एम नॉट शेयरिंग दिस थिंग, ठीक है। आप इसको प्लीज एक बार जरा अपने पास लिख लो, आई हैव टू ऐड सम फ्यू स्लाइड्स। लिख लिया आप लोगों ने? शेयर स्टॉप कर दूं अभी? यस, किया? हो गया? 0 0 0 रिमाइंडर में। सो अगर हम इसको करें, सो 1 1 0 0, सो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, फिर यहाँ से 0 नीचे आया, सो दैट इज अगेन 1 1 0 0, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, ये दोनों क्रॉस आउट हो गए, फिर पहले ये 1 कॉपी किया, फिर ये 0 1 1 0 0, दैट इज 0 1 1 अगेन, और ये 0 है, सो 1 1 0 0 एंड रिमाइंडर इज the thing that is 0। सो ये आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम।
So अब you will see आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, राइट, इसको मैं 0 लिखती हूँ, दैट इज योर सिंड्रोम और रिजल्ट इज 0. So अगर if you are at the receiver side and you perform the modulo 2 division again, modulo 2 means आपका जो XOR है, if you perform again and if the remainder is 0, this means that there are no errors. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, so this means there are no errors. So यहाँ के केस में syndrome that is your remainder is 0, so this means that no errors. So जो आपका डेटा था वही रिसीवर को रिसीव हुआ है. ये चीज क्लियर हुई? यस मैम. थोड़ा बहुत ठीक है. अभी आई गिव यू वन एग्जांपल, आप उसको ट्राई करो फिर और उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. 1 0 1 1 0. सो जो आपका क्वेश्चन है वो है दैट sender has to send the data that is 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है. एंड योर CRC जनरेटर में जो जनरेटर जो है दैट इज 1 1 0 1. एंड रिसीवर को जो रिसीव हुआ है दैट इज 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1. सो अब आपको ये बताना है कि क्या जो रिसीवर को जो कोडवर्ड ये रिसीव हुआ है इज इट एरर फ्री और इज कंटेन एरर, मतलब इज इट करेक्ट और नॉट, ये बताना है आपको बेसिकली. So what you have to do, you have to perform the XOR और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है what you have to do, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पूरा, you just have to check whether ये जो यहाँ पे आपकी CRC कितने की है, 4 बिट्स की है, राइट. 4 है ना, k is equal to 4. So आपके कोड वर्ड में कितनी बिट्स ऐड हो जाएंगी, 3 बिट्स ऐड हो जाएंगी. So what you do, आप जब पूरा डिविजन परफॉर्म करो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 3 बिट्स का होगा. You have to just check कि ये जो रिमाइंडर है क्या वो इन 3 बिट्स के इक्वल है या नहीं. अगर ये 3 बिट्स और ये 3 बिट्स रिमाइंडर की बिट्स और ये रिसीवर की बिट्स अगर सेम है और ये पूरा जो कोडवर्ड है वो एज इट इज ये वाला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपका जो रिसीवर ने जो रिसीव किया है वो सही है. तो एक बार करो और फिर मैं पूरा प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेंगे. यस मैम. इक्वल आ रहा है यस मैम. एवरीवन? सो अगर आप इसको परफॉर्म करो, सो 1 0 1 1 0 1 1 और k है आपके 4, सो 3 बिट्स आप ऑगमेंट करोगे दैट इज 0 0 एंड 0 and then you will perform your XOR. So 1 1 0 1. So 1 1 0 1 में आपने परफॉर्म किया, so this will become 0, this will become 1, this will become 1.
then ये 0 copy हुआ, then 1 1 0 1, so this will become 1, rest all will become 0. so फिर ये copy हुआ, ये copy हुआ और ये copy हुआ, so it is 1 1 1 0. so 1 1 0 1, that is ये 1, फिर ये 2 zeros copy हुए, 1 1 0 1. this is 1 0 0 and so 0 0 1 and 0 0 1. so ये भी आपका equal है and this is also equal, so ये आपका there is no error. क्लियर हो गया चीज एवरीवन? सबका यही आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है. सो अब आपकी ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपका रिसीवर का भी क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू रूल्स. कुछ रूल्स होते हैं आपके सीआरसी में. ठीक है. सो क्या रूल्स हैं वो? First rule is that CRC generator, that is your CRC generator polynomial, should not contain only x. मतलब कि सीआरसी पॉलिनोमियल, आपका जो जनरेटेड पॉलिनोमियल है, खाली x नहीं होना चाहिए. शुड नॉट कंटेन ए, शुड नॉट बी ओनली x, शुड नॉट बी ओनली x. कैसे? अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करना चाहूँ, सो हाउ विल आई प्रूव इट? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका. ठीक है. ये रूल है, सो इट विल फॉलो थ्रू आउट. सो क्या रूल है आपका? रूल है दैट सपोज एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम अगर करें, सो डेटा है आपका 1 0 1 1. ठीक है. और जो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल है वो है x. सो आप मुझे बताओ कि आपकी की क्या जनरेट हुई अगर x है आपका पॉलिनोमियल? तो 1 0 मैम. 1 0 करेक्ट. ठीक है. अगर 1 0 है, सो जो आपका कोडवर्ड बनेगा, कोडवर्ड में आप कितनी बिट्स और ऐड करोगे? 1 bit. 1 बिट. करेक्ट. हमने 0 ऐड कर दी. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्सओर. सो 1 0 को आपने एक्सओर परफॉर्म किया इस पे, सो इट विल बी 1 0. पहले क्रॉस हो गया, फिर आपने ये 1 नीचे लिया, देन अगेन दिस 1, फिर आपने 1 0 किया, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0 एंड 1 0. सो आपका रिमाइंडर आया 0. मतलब कि यहाँ पे जो आपका अब जो आपकी रिमाइंडर आ रही है दैट इज योर 0. सो आपको क्या बिट ऑगमेंट करना है? 0 ऑगमेंट करना है अपने कोडवर्ड में. सो ये तो आपका हुआ सेंडर की साइड का. ठीक है. दिस इज व्हाट सेंडर इज हैविंग. ये सेंडर ने भेजा है. नाउ सपोज जो रिसीवर है, इफ दिस इज द रिसीवर, रिसीवर ने जो रिसीव किया दैट इज, रिसीवर ने जो वर्ड रिसीव किया वो है 1 0 1 0 0. ठीक है. so now what receiver will do? अब receiver ने ये word receive किया, so it will again perform the XOR with this code word, with this polynomial. so again it will perform. so ये पूरा cancel out हो गया. 1 0 है, ये पूरा cancel out हो गया और 0 है, so यही आपका रिमाइंडर बचा. so अब आप मुझे ये बताओ, जो रिसीवर के अकॉर्डिंग क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? रिसीवर इस कोड वर्ड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? ये जो कोड वर्ड मिला रिसीवर को, क्या रिसीवर इसे एक्सेप्ट करेगा? वन 0 1 1 0. मैं पूछ रही हूँ कि रिसीवर को मिला 1 0 1 0 0. रिसीवर ने इस पे अपना जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म किया, दैट इज मॉड्यूलो 2 डिवीजन, दोबारा एक्सओर आपने दोबारा परफॉर्म किया रिसीवर ने. ठीक है. और रिमाइंडर आया उसका 0. सो रिसीवर के अकॉर्डिंग ये कोडवर्ड सही है या गलत है जो उसको रिसीव किया है? नो एरर. नो एरर देगा ना रिसीवर? रिसीवर देगा नो एरर. रिसीवर विल एक्सेप्ट इट. Yes, ma'am. राइट. रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा इसे. Yes, ma'am. यस मैम. बट आपको पता है कि आपका जो कोडवर्ड था जो सेंडर ने जनरेट किया था वो था ये
और जो रिसीवर को मिला वो था ये। क्या ये दोनों सेम है? नो मैम। नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका सीआरसी जनरेटर जो है इफ इट विल बी ओनली एक्स, तो आपका जो आपका पॉलिनोमियल है, जो आपका एरर डिटेक्शन है, वो नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई सीआरसी जनरेटर शुड नॉट बी ओनली एक्स। ये रूल क्लियर हो गया? यस मैम। सबको क्लियर हो गया ये वाला? सबको क्लियर हो गया? क्लियर मैम। ओके, देन वी विल मूव टू दी सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल इज दैट if x plus 1 is a generator it can detect odd number of errors. दिस मीन्स कि अगर आपकी x plus 1 जो है वो जनरेटर पॉलिनोमियल है, सो इट विल बी एबल टू डिटेक्ट ओनली ऑड नंबर ऑफ एरर्स। मतलब कि अगर आपकी ऑड बिट में एरर्स आई हैं तो वो सिर्फ वही डिटेक्ट कर सकती हैं। अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका रूल है, ठीक है, इट विल फॉलो थ्रू आउट। इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट सेंडर ने सेंड किया जो कोड वर्ड है, दैट इज डेटा जो है आपका वो है 1011, ठीक है, और जो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल जनरेट हुआ इट इज x plus 1। अगर x plus 1 है सो व्हाट विल बी द की क्या होगी आपकी? 11 मैम। 11 करेक्ट, ठीक है। 11 है तो कोड वर्ड क्या हो गया? 110 10110, ये आपका कोड वर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? 3 रिसीवर्स हैं आपके पास, ठीक है, देयर आर 3 रिसीवर्स, रिसीवर 1, रिसीवर 2 एंड रिसीवर 3। सो आई जस्ट राइट हियर, ये है आपका रिसीवर 1, ये है आपका रिसीवर 2 एंड ये है आपका रिसीवर 3। अब आपका कोड वर्ड है 10110, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल परफॉर्म दी महेश मैं आपको म्यूट करूं, ठीक है, और ओके। सो आपका 10110 है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे 11 से 10110 को आपने किया डिवाइड, मतलब आपने वही एक्सओर ऑपरेशन किया। सो 11 आया यहाँ पे, सो 011, दिस इज 1, सो अगेन इट विल कैंसिल आउट, फिर 10 है, सो ये आपका 11 हुआ, तो रिमाइंडर क्या आया आपका? 1 आया रिमाइंडर, ठीक है। सो जो आपको कोडवर्ड जो सेंड करना है वो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, यस मैम। ठीक है, 10111 हो गया। बाय बिकॉज ये 0 था आपका जो आपने अपेंड किया और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 1, सो यू विल ऐड दिस 1 ओवर हियर। अब सपोज रिसीवर 1 को जो रिसीव हुआ, रिसीवर 1 रिसीव्ड द डेटा एज 10110, ठीक है। रिसीवर 2 को जो रिसीव हुआ वो हुआ 10100, और रिसीवर 3 को जो रिसीव हुआ वो हुआ 11234, ठीक है। सो अब आप जरा मुझे बताओ, रिसीवर 1 जो है वो अपना एरर डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं? रिसीवर 1 का करो और मुझे बताओ कि वो एरर डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं।
No, ma'am. नहीं कर पाएगा? Yes. 10110 1 is remainder, ma'am. ठीक है, फिर आपका आया यहाँ पे है 1 1, सो नाउ यू परफॉर्म हियर, सो आपका आया 1 यहाँ पे, फिर आपने ये वाला 1 कैरी किया, 1 1 हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 और 0 अगेन 1 1, सो आपका आया 1। सो आपका सिंड्रोम क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए 0, आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है 1, सो मतलब कि ये आपका एरर डिटेक्ट कर लेगा। वो क्या क्या कंडीशन थी एरर डिटेक्ट करने की? कि आपका जो सिंड्रोम होता है, जो आपका रिमाइंडर है, दैट एट मतलब एट योर रिसीवर साइड, एट रिसीवर साइड वो क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है दैट मीन्स कि एरर फ्री है, और अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस मीन्स कि देयर इज एरर। तो यहाँ पे वो इक्वल टू किसके? इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ पूनम? Yes, ma'am. नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पे एरर है। सो रिसीवर 1 ने एरर डिटेक्ट कर ली। रिसीवर 2 और रिसीवर 3 चेक करके बताओ मुझे एरर डिटेक्ट करेगा कि नहीं। Yes, ma'am. 2 को डिटेक्ट कर लिया? Yes, ma'am. चलो लेट्स चेक। 1 0 1 0 0, सो ये हुआ आपका 1 1, सो ये 1 1 हुआ, दैट इज 1 ओवर हियर, फिर 1, सो 1 1 हुआ अगेन 0, फिर ये आपका रिमाइंडर क्या आया? 0 0, दैट इज 0। सो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाएगा। Yes, ma'am. सो ये एरर डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं। सो इट विल से दैट एरर फ्री है आपका ये कोड, राइट? Yes, ma'am. है ना? अब रिसीवर 3 का चेक करते हैं, रिसीवर 3 डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। सो इट विल Not अगेन remainder, 1 1, सो इट इज 1 1, दिस इज 1 अगेन 0, सो 1 1 1 अगेन 0, 1 1 1 0 अगेन 1 1, सो 1। 1. सो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? एरर। ठीक है, सो रिसीवर, हर रिसीवर ने अपना अपना आउटपुट दे दिया। रिसीवर 1 विल से दैट इट इज नॉट हैविंग एनी एरर। अब अगर आप चेक करो, इफ यू चेक हियर, यहाँ पे कौन सी बिट चेंज हुई है? आपकी फाइनल बिट थी 1 0 1 1, सो यहाँ पे आपकी ये वाली बिट चेंज हुई। Yes, ma'am. कितनी बिट चेंज हुई? 1 बिट चेंज हुई आपकी। यस और नॉट? Yes, ma'am. रिसीवर 2 पे कितनी बिट चेंज हुई? ये वाली बिट भी चेंज हुई और ये वाली बिट भी चेंज हो गई। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो Yes, ma'am. कितनी बिट चेंज हुई यहाँ पे? 2 bits, ma'am. 2 बिट। और यहाँ पे कितनी बिट चेंज हुई? 3, ma'am. 3 बिट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा था? अगर x+1 जनरेटर है आपका, दैट इज आपका जनरेटर है, सो इट कैन डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ एरर्स। सो ये आपका ऑड नंबर ऑफ एरर था, Yes, ma'am. सो ये डिटेक्ट कर लिया उसने। ये आपका ऑड बिट एरर था, ये डिटेक्ट कर लिया उसने, बट इवन बिट वाले को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो हेंस ये आपका रूल जो है प्रूव हो गया कि अगर आपका x+1 जनरेटर है, सो वो सिर्फ ऑड बिट की, अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स हुई हैं, मतलब ऑड बिट्स को आपने चेंज किया है, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा, इवन वालों को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई थिंक प्रीवियस कौन सी, मुझे ध्यान नहीं है। So if you see it, you will find here they have given this option also. They are asking which of the following is true.
सो जहां पे भी आपको ये दिखे कि x+1 इज अ जनरेटर, इट कैन डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ एरर्स, तुरंत उसे क्लिक कर देना कि दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, सो ये है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, दैट इज CRC। अब नेक्स्ट है आपका चेकसम। चेकसम क्या है? बेसिकली इन चेकसम एरर डिटेक्शन स्कीम the data is divided into k segments of m bits। मतलब कि अगर आपका डेटा, सपोज इफ आई से दैट 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है? So I am saying that I am dividing this entire data into two segments. Two segments में I have to divide it such that कि हर सेगमेंट को कितनी बिट्स मिले? each segment of m bits. So I am saying two segments of 4 bits. If I say like this, so this means that 1 2 3 4 ये मेरा पहला सेगमेंट हो गया, सेगमेंट 1, and ये मेरा सेगमेंट 2. So value of k is 2 and value of m is 4. So what will happen in checksum is कि आपका जो entire data है, you will divide the data into k segments, each of m bits. फिर क्या होगा? सेंडर के एंड पे क्या होगा? सेगमेंट्स को आप ऐड करोगे और उनका सम ऑब्टेन करोगे, फिर इस सम का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे और जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको आप भेजोगे। वो कॉम्प्लीमेंटेड सम जो है इट विल बी द चेकसम। फिर द चेकसम सेगमेंट इज सेंट अलोंग विद द डेटा सेगमेंट्स, ठीक है? फिर रिसीवर क्या करेगा? जो भी उसे सेगमेंट रिसीव हुए हैं उन सबको ऐड करेगा, फिर उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है, सो द डेटा इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज डिस्कार्डेड। कैसे? अगर आप यहाँ पे, ये इमेज क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे इफ यू नोटिस कि यहाँ पे आपकी है 4, जो आपका ओरिजिनल डेटा होगा उसको आपने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया और हर सेगमेंट की बिट की क्या बिट, कितनी बिट्स है? 8 बिट्स। सो व्हाट विल हैपन इज सेंडर के साइड पे क्या हो रहा है? सेंडर क्या करेगा? अब सेंडर करेगा इन्हें ऐड, हर सेगमेंट्स को ऐड करेगा। सो बिटवाइज एडिशन होगा 1 0 0, करो आप लोग भी एडिशन करो, 1 1 0 1 प्लस नॉर्मल एडिशन है, ठीक है? 1 1 1 एंड 0 0 0 1 0, ओके, यहाँ 0 0 1 है एंड 0 0 एंड 1 0, ठीक है? इसका एडिशन करना है। सो 1 0 इज 1, 0 1 इज 1, 0 0 is 0, 1 0 is again 1, 1 1 1 1 1 1 1 is 0 with a carry of 1। ये चीज पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो आपका कैरी 1 है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी एडेड ओवर विद दिस 1, यहाँ इस वाले 1 के संग ऐड करके आप क्या हो जाएगा? 1 1 0 1 1 1 0 1, सो दिस इज 1 और ये एज इट इज कॉपी हो गया। सो 0 1 1 1 and 1, so 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स आपकी m में है, 8 बिट्स ही आपकी यहाँ आ गई। आपने इन दो बिट्स को, इन दो सेगमेंट्स को ऐड कर लिया, आपका रिजल्ट आया ये। अब आप क्या करोगे? इस सेम सेगमेंट को इस वाले से ऐड करोगे। सो 0 1 2 3 4 5 ये हो गया, प्लस सेम आप थर्ड वाले से ऐड करो। सो 0 0 1 0 0 1 0 0, अब इसका ऐड करो आप तो क्या आएगा? 0 0 1 1 is 0 with the carry of 1, so 1 1 again 0 carry of 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 plus 1 1 carry 1, ठीक है? ये आपका हुआ। अब आपको इसमें क्या ऐड कर देना है? फोर्थ सेगमेंट ऐड करना है, दैट इज 1 0 0 0, कितने 0 है? 4 एंड 1 0 0। So, अब आपने इसको ऐड किया, सो 0 0, दिस इज 1 0 0 1 0, ये आपका 0 हुआ, यहाँ पे कैरी आ गया 1 एंड यू विल ऐड दिस 1 ओवर हियर। सो आपका जो रिजल्ट आया फाइनल वो होगा 0 0 1 0 0 1 0 1। इसमें कोई एरर, इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम, सिंपल एडिशन है, ठीक है? सो अगर आपको ये इमेज क्लियर दिख रही है, सो आपका जो रिजल्ट आया वो यही आया है। सेंटर की साइड पे क्या हुआ? पहले इन दो सेगमेंट्स को ऐड किया, दैट इज दीज टू सेगमेंट्स, फिर थर्ड वाले सेगमेंट को ऐड किया और फिर फोर्थ वाले सेगमेंट को ऐड किया, ठीक है? फिर जो रिजल्ट आया उसका आप क्या करोगे? उसका निकालोगे कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या?
वंस कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इसका, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 110 सो ये हो गया आपका चेकसम। ठीक है, सो अब क्या करोगे आप यहाँ रिसीवर एंड पे, अगर आपको विजिबल है इमेज, रिसीवर एंड पे देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सेगमेंट्स थे, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, इसको ऐड किया, फिर रिजल्ट आया, उसके संग थर्ड सेगमेंट को ऐड किया, रिजल्ट आया, फोर्थ सेगमेंट को ऐड किया। फोर्थ सेगमेंट को जब आपने ऐड किया, सो ये जो आपका चेकसम आया था ना, चेकसम कॉम्प्लीमेंटेड वाला, इसको भी आप रिसीवर को भेजोगे, रिसीवर इसको भी फोर्थ वाले जो है आपका सेगमेंट उसके संग ऐड करेगा, फिर जो आपका सम आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए ऑल 0, दिस मीन्स कि डेटा आपका करेक्ट है और वो डेटा जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज? यस मैम। सो ये होता है आपका चेकसम। अगर मैं आपको चेकसम का एग्जांपल का एक क्वेश्चन दूं, एक मिनट, सपोज जो हमें चेकसम परफॉर्म करना है वो करना है, जो सेंडर का जो डेटा है दैट इज 701322, ये आपका ना डेसिमल्स में दिया हुआ है, और आपको ये बोला है कि जो आपकी k है, द वैल्यू ऑफ k दैट इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स है 3 और m जो है वो है 2। तो आपके सेगमेंट्स क्या बन गया, पहला सेगमेंट हो गया 70, दूसरा हो गया 13 और तीसरा हो गया 22। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। तो आप मुझे बताओ सेंटर के साइड पे चेकसम क्या आएगा, और ये आपके डेसिमल्स में है। देखो जब बाइनरी में था तो आपने कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाला था, वंस कॉम्प्लीमेंट। सो अगर डेसिमल में है तो कौन सा निकालोगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, करो फिर आपको बताती हूँ कैसे करेंगे वाला। बस मुझे बता दो चेकसम क्या आ रहा है आपका, अगर चेकसम कैलकुलेट हो जाए तो चेकसम क्या आ रहा है आप लोगों का। ओके ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका 70 है, आपने एडिशन परफॉर्म किया, सो क्या आ गया 83, राइट? ठीक है, फिर आपने क्या ऐड किया इसमें 22, सो क्या आ गया 3 4 5 एंड 8 9 10, 105 आ गया। ठीक है, सो 105 जो है बेसिकली जब आप नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो ना, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में, सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में जो सबसे बिगेस्ट नंबर माना जाता है वो माना जाता है 99। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो नंबर है 105 वो बड़ा हो गया 99 से। So what you will do, you will take this one and you will add it over here. So ये हो गया आपका 6। ये क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब आपको 6 का क्या निकालना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे, 99 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया 93। सो आपका जो चेकसम बना वो क्या बन गया 93। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, अब सपोज रिसीवर साइड पे, रिसीवर साइड पे जो रिसीव हुआ वो हुआ एग्जैक्टली मान लो हम यही मान लेते हैं कि रिसीवर को जो मिला
वो यही मिला 70, 13, 22, 93। सो अब क्या करोगे, 70 और 13 को ऐड किया 83, 22 के संग ऐड किया 105, इस 1 को यहाँ ले गए 06 और फिर 93 के संग ऐड किया, सो क्या आ गया 99। और वहां के केस में क्या आ रहा था, वहां पे आंसर तो रिमाइंडर 0, बट यहाँ पे आ रहा है 99। सो आप 99 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, राइट? यही कर रहे थे ना वहां पे भी? यस मैम। सो 99 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0। सो ये हो गया आपका करेक्ट, मतलब कि जो रिसीवर ने जो रिसीव किया है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब सपोज रिसीवर ने जो रिसीव किया वो कुछ और है, सपोज लेट अस राइट समथिंग एल्स। रिसीवर ने जो रिसीव किया है दैट इज 71, 14, 22 और 93। अब आप मुझे चेक करके बताओ क्या ये एक्सेप्ट करेगा रिसीवर? आपको तो दिख रहा है कि गलत है, बट रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक्सेप्ट होगा, ये बताओ। नॉट एक्सेप्टेड मैम। महेश, आपके अकॉर्डिंग अगर आपका 71 है, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल ऐड 71 एंड 14। so क्या हो गया 4 and 5 और ये हो गया 7, 8, 85 हो गया। फिर आपने क्या किया, ऐड किया 22। so 22 ऐड करोगे तो 5, 6, 7 और 8, 9, 10। अगेन ये आपका 1 यहाँ ऐड हो गया, सो हो गया 08। 08 में आप क्या ऐड करोगे, 93। so 8, 9, 10, 11 और ये 10 हो गया। फिर आपका ये 1 यहाँ आ गया तो 02 हो गया। जब 02 का 9th कॉम्प्लीमेंट करोगे, सो 99 एंड 02 क्या देगा आपको, 97। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, सो ऐसे आपका ये चेकसम का कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। नेक्स्ट जो आपका है एरर करेक्शन। अब हमने अभी तक हमने पढ़ा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के हमने पढ़े कि पैरिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड से चेक कर सकते हैं हम, और चेकसम से कर सकते हैं। एरर करेक्शन का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज योर हैमिंग कोड। हैमिंग डिस्टेंस नहीं, हैमिंग कोड। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस अलग चीज होती है, हैमिंग कोड अलग चीज है। सो व्हाट इज एरर करेक्शन? Error correction codes are used to detect and correct the errors। मतलब कि पहले आप ढूंढोगे और फिर आप उन्हें करेक्ट करोगे। ठीक है, दोनों चीजें करनी है एरर करेक्शन में। फॉर करेक्टिंग द एरर्स, अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में, हाँ मैंने एक चीज पढ़ाई थी, रिडंडेंसी। यस मैम। ध्यान है? यस क्या था रिडंडेंसी? कि हम एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट एंड डिटेक्ट द एरर। ठीक है, सो एरर करेक्शन में हम इसी रिडंडेंसी का यूज करते हैं। क्या होता है, फॉर करेक्टिंग द एरर्स वन हैज टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन। जब आप डिटेक्ट कर रहे थे तो आपको ये मतलब नहीं था कि एरर कौन सी बिट में हो रहा है, बट जब आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको करेक्ट करना क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे आपको एरर को करेक्ट करना है, कहाँ पे एरर अकर हुई जिसे आप करेक्ट करोगे वो आपको पता होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, मतलब in order to achieve the correction, error correction, we have to add some additional redundant bits to data bits. Suppose R जो है, R is the number of redundant bits और M is the total number of bits, जो मैसेज में आपकी टोटल बिट्स, आप उसको डेटा बिट्स भी बोल सकते हो। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से 2 raised to power greater than equal to M plus R plus 1, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये जो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स हैं ये कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी डेटा में कितनी बिट्स ऐड करनी है, रिडंडेंट बिट्स कितनी एडिशनल बिट्स ऐड करनी है, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सो 2 raised to power is greater than equal to M। M हो गया आपका नंबर ऑफ बिट्स इन द मैसेज या फिर डेटा बिट्स, R हो गया नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स प्लस 1। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सो अब लेट्स स्टार्ट विथ हैमिंग कोड।
Hamming code is a set of error correction codes that can be used to detect and correct the errors that occur when data is moved or stored from sender to receiver. It is a technique developed by R.W. Hamming for error correction. ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो टेक्निक्स है वो एरर करेक्शन की है एंड कौन सी टेक्निक्स एरर डिटेक्शन की है. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है calculation of number of redundant bits. So first step you have to do is you have to calculate कि आपके data के according how many redundant bits are to be added. number calculate करना है. फिर उनकी पोजीशन फाइंड करनी है कि क्या उनकी पोजीशन होगी. फिर उनकी वैल्यू फाइंड करनी. वैल्यू मींस कि वेदर वो 0 होंगी या 1 होंगी, क्योंकि आपका डेटा तो बाइनरी फॉर्म में है, तो या तो वैल्यू रिडंडेंट की 0 हो सकती है या रिडंडेंट बिट की वैल्यू 1 हो सकती है. फिर जब आपके रिडंडेंट बिट्स आपने मैसेज में एम्बेड कर दी, एम्बेड मींस ऐड कर दी, जोड़ दी, तब वो आप यूजर या रिसीवर को भेजोगे. अब एक एक करके हम स्टेप्स को देखते हैं. ठीक है. स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स. तो ये आप उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे. 2 raised to power is greater than equal to m plus r plus 1. ठीक है. फिर स्टेप 2 हुआ पोजीशनिंग द रिडंडेंट बिट्स. अब ये देखो, द रिडंडेंट बिट्स आर प्लेस्ड एट बिट पोजीशंस ऑफ पावर्स 2. मतलब कि आपकी अगर कोई भी डेटा वर्ड ऐसे है तो कितने बिट्स की हो गया ये? 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है. आपके 6 बिट का डेटा वर्ड है सपोज, जो आपको डेटा, जो आपका अपना डेटा वर्ड है. अब इसमें आपको रिडंडेंट बिट्स को ऐड करना है. सो जो रिडंडेंट बिट्स की जो पोजीशन होगी वो सिर्फ होगी या तो 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. मतलब कि रिडंडेंट बिट्स सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे ऐड की जा सकती हैं जिनकी 2 के रिस्पेक्ट में कुछ पावर होगी. क्लियर हुई ये वाली बात? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट कुछ समझ में आया या दोबारा रिपीट करूं? रिपीट कर. देखो क्या बोल रहे हैं वो, अगर आप ध्यान से समझो. सपोज आपका जो डेटा है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो डेटा हो गया मेरा सपोज 1010. ठीक है. सो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई? 4. ठीक है. अब मुझे कैलकुलेट करनी है रिडंडेंट बिट्स. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? r. तो क्या फॉर्मूला है r का? 2 raised to power r is greater than equal to m plus r plus 1. So 2 raised to power r is greater than equal to m है 4 plus r plus 1. So 2 raised to power is greater than 5 plus r. ठीक है. सो अब यहाँ पे मुझे समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू लेनी है जो, अगर मैं r की वैल्यू सपोज लेती हूँ 1. सो अगर मैं r की वैल्यू 1 लूंगी, सो 2 is greater than equal to 6. ये करेक्ट होगा? है ना. r की वैल्यू 1 रख के सब्स्टिट्यूट करो. ये हिडन ट्रायल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको. तो अब 2 की वैल्यू 1 रखोगे, सो 2 raised to power 1 हो गया 2 greater than equal to 5 plus 1 that is 6. तो ये हो गया गलत. फिर आपने लिया r की वैल्यू 2. सो जब आप 2 लोगे, सो 2 raised to power r हो गया 2 raised to power 2 greater than equal to 5 plus 2. सो ये हो गया 4 greater than equal to 7. ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग. फिर आपने लिया r is equal to 3. So 2 raised to power r, that is 2 raised to power 3 greater than equal to 5 plus 3. So ये क्या वैल्यू है? 8 greater than equal to 8. So ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो गई. ठीक है. अब मतलब कि आपकी r की जो वैल्यू है वो 3 है. मतलब कि आपके इस डेटा में 3 रिडंडेंट बिट्स ऐड होंगी. So, अगर आपका डेटा 4 बिट का है और अगर मैं 3 बिट्स और ऐड कर दूं तो टोटल कितनी हो गई? 7. राइट. So, इसका मतलब कि अब जो आपको डेटा भेजना है सेंडर से रिसीवर पे, सो रिसीवर को जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा 7 बिट का. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7. ये क्या वैल्यू हो गई? ये होगी 1, ये हो गई 2. ये अगर मैं इनकी इंडेक्स पोजीशन लिखूं, सो 1 2 3 4 5 6 7. राइट.
1 को मैं 2 रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. 2 को मैं 2 रेज टू पावर 1 लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. 4 को 2 रेज टू पावर 2, और फिर एक आपका बचा 8 जिसको आप 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो। बट आपकी जो आपकी बिट्स है वो कहाँ तक की है, सिर्फ 7 बिट्स की, तो हमें 8 की जरूरत है नहीं, सो वी विल जस्ट डिस्कार्ड दिस 8। सो वो ये बोल रहे हैं कि जो रिडंडेंट बिट्स हैं आपकी, जैसे R1 आपकी 3 रिडंडेंट बिट्स हो गई, सो मैं उनको बोल देती हूँ R1, R2 एंड R3। सो जो रिडंडेंट बिट्स हैं उनकी जो प्लेसेस होंगी, जहां पे वो प्लेस की जाएंगी, वो होगी 2 की पावर में। सो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 0 पे आप R1 प्लेस करोगे, 2 रेज टू पावर, यहाँ पे आपने R1 प्लेस कर दिया, 2 रेज टू पावर 2 पे आप R2 प्लेस करोगे, 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 2 रेज टू पावर 2, सॉरी, दैट इज 4 पे आप R3 प्लेस करोगे, और जो आपका डेटा है वो हो जाएगा 1010। अब क्लियर हुआ? Yes. अभी भी डाउट है? No, ma'am. सो इसका मतलब कि आपका जो डेटा बनेगा, जो आप भेजोगे, वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे आपकी R3 रिडंडेंट बिट, यहाँ पे R2 रिडंडेंट बिट, और यहाँ पे R1। जो आप डेटा भेजोगे, सो आप इनकी वैल्यूज पहले फाइंड करोगे कि 0 है या 1 है, और फिर आप आगे फॉरवर्ड करोगे। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड कर ली इसकी पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बिट्स। ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल है, सपोज नंबर ऑफ डेटा बिट्स है 7, सो आप जरा मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताओ कि रिडंडेंट बिट्स के नंबर कितना हुआ। अगर डेटा बिट्स 7 है तो रिडंडेंट बिट्स कितनी हुई? 3, ma'am. हाँ, 3. 3। Redundant bit. करके देखो, 2 रेज टू पावर r is greater than equal to 7 plus r plus 1, that is 2 raised to power is greater than 8 plus r। so r की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती, r की वैल्यू आप बोल रहे हो 3। so अगर मैं r की वैल्यू 3 लूं, so it is 2 raised to power 3, that is 8। 8 is greater than equal to 11, गलत हो जाएगा। so r raised to power 4 लेके कैलकुलेट करो, r मतलब r equal to 4 कैलकुलेट करो। अगर मैं लिखूं r is equal to 4, so it will be 2 raised to power 4, that is 16, greater than equal to Greater than 11, 12. सॉरी हाँ 12। Yes, ma'am. so ये आपको करेक्ट हो गया, Yes, ma'am. क्योंकि आपको तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है, यहाँ पे तो 8 बड़ा नहीं है। so r की वैल्यू होगी 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितनी हो गई? 4। so टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? 11. 11। ठीक है। सो इसका मतलब पहले आपका जो डेटा था वो 7 बिट्स का था, फिर आपने फाइंड किया कि रिडंडेंट बिट्स कितनी होनी चाहिए, सो वही आपकी 4, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो आपको भेजनी थी वो आ गई 11। क्लियर हो गया इतना? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू, कि रिडंडेंट बिट्स की वैल्यू क्या होगी। कल अगर आपको ध्यान हो कि हमने पैरिटी पढ़ा था, पैरिटी। Yes, ma'am. ठीक है। पैरिटी में हम क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे थे तो हम क्या पैरिटी लगा रहे थे, 0 या 1? 0, ma'am. 0। ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 1. 1 लगा रहे थे। सो इसको हम बोलते हैं इवन पैरिटी। Yes, ma'am. अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं और आप उन्हें 0 लगा रहे हो, अगर आपका इवन नंबर ऑफ वंस काउंट करने पे आ रहा है तो वो होता है इवन पैरिटी। अगर उल्टा हो जाए, दैट इज अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है और फिर आप उसे 1 रखो, उसे 0 रखो, और इवन नंबर ऑफ वंस है तो आप उन्हें 1 कर दो, मतलब आप अपने वंस को ऑड में कन्वर्ट कर दो, नंबर ऑफ वंस को ऑड में कन्वर्ट करो, सो वो होता है ऑड पैरिटी, और नंबर ऑफ वंस को इवन में कन्वर्ट करो तो वो होता है इवन पैरिटी। ये चीज क्लियर हुई? मैम रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप अपने वंस को, ठीक है, वंस को आप इवन नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, इफ यू आर कन्वर्टिंग योर वंस
इनटू इवन नंबर, सो जो आपकी पैरिटी जो उसको आप बोलोगे वो होती है इवन पैरिटी। यस मैम। ठीक है, और अगर आप अपने वंस को ऑड नंबर में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं ऑड पैरिटी। ठीक है, बट हमें डील करना है सिर्फ इवन पैरिटी के साथ, बट आपको पता होना चाहिए कि ऑड पैरिटी भी क्या होती है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो इस वाली इमेज यहाँ पे, सो जो रिडंडेंट बिट्स हैं आपकी वो बेसिकली पैरिटी की बिट्स ही हैं। So a parity bit is an extra bit that makes the number of one either even or odd. So आपकी टू टाइप्स की पैरिटी हुई, even parity and odd parity. Even parity क्या है? To check for even parity, if total number of one is even. अगर आपके total number of one even है, तो आपकी जो parity bit है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0. और अगर टोटल नंबर ऑफ वन अकरेंसेस जो है वो ऑड है तो क्या वैल्यू हो जाएगी बिट की? 1। मतलब कि बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके नंबर ऑफ वंस क्या रहे हमेशा? इवन। सो अगर आपके इवन नंबर ऑफ वंस वाली कंडीशन है सो वो कहलाएगी इवन पैरिटी, और अगर आपके नंबर ऑफ वंस रहे हमेशा ऑड तो वो बुलाई जाएगी ऑड पैरिटी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अगर टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है सो आप एक वैल्यू ऐड करोगे 1, सो वो क्या हो जाएगा? ऑड पैरिटी। और अगर वंस ऑड है सो आप क्या करोगे? 0। सो मतलब कि इफ यू हैव इवन वंस, इफ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन इवन वंस तो वो कहलाई जाएगी आपकी इवन पैरिटी। और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस है एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन कि आपके वंस हमेशा ऑड नंबर में ही रहे, सो इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑड पैरिटी। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यूज। हर बिट की, हर रिडंडेंट बिट की वैल्यू होती है जो किसी पोजीशन से फाइंड की जाती है। कैसे? R1 bit is calculated by performing a parity check on the bit positions whose binary representation includes 1 at the least significant position. अच्छा, अगर 1 0 0 है सो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये वाली हुई कि ये वाली हुई? मैम 0 वाली। 0 हुआ ना, ये हुआ ना LSB। ठीक है, सो R1 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? R1 की वैल्यू उन प्लेसेस पे डिटरमाइन की जाएगी जहां पे आपकी जो 1 है, बाइनरी में जो 1 है उनका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे वैल्यू 1 रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 की, सो 1 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। अगर 2 को कैसे लिखोगे? 2 को आप लिखोगे ऐसे। 4 को ये, और 6 को ऐसे, राइट? तो R1 की पोजीशन कैसे डिटरमाइन की जाती है? R1 की पोजीशन डिटरमाइन की जाती है कि जो आपकी LSB है, दैट इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या है? 1। सो वो कैसे हम पता लगी? 1 की वैल्यू 1 पे यहाँ पे 1 है, 3 पे यहाँ पे 1 है, 5 पे यहाँ पे 1 है, और 7 पे यहाँ पे 1 है। सो इसका मतलब कि बिट पोजीशन R1 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यू हैव टू चेक 1, 3, 5 और 7, इनकी पोजीशंस चेक करनी है आपको। इन बिट्स की पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो चेक करनी है आपको। और क्या चेक करना है? इवन पैरिटी। मतलब कि अगर इनकी इवन पैरिटी है, सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, जैसे कि एक एग्जांपल लो, पहले एग्जांपल समझते हैं। ये आपका डेटा है, ठीक है? कितनी बिट्स का डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स का डेटा है आपका। सो अभी हमने कैलकुलेट किया कि अगर डेटा में 7 बिट्स हैं तो रिडंडेंसी बिट्स कितनी हो जाएंगी? 4। टोटल कितनी हो गई? 11। ठीक है, सो अब मेरी टोटल बिट्स हो गई 11। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप मुझे बताओ कि रिडंडेंट बिट्स कहाँ पे लाए करेंगी? कौन कौन सी पोजीशन पे रिडंडेंट बिट्स लाए करेंगी? 1 3 5 7। नहीं 1 3 5 7 नहीं, वो तो R1, वो तो मैं अभी पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी रिडंडेंट बिट्स हुई R1
R2, R3 और R4। सो आप मुझे बताओ R1, R2, R3, R4 कहाँ लाई करेगी इसमें? अभी हमने पढ़ा था ना कि 2 की पावर्स पे लाई करती है हमेशा। यस मैम। सो R1 कहाँ लाई करेगी? मैम 1 पे। सो R1 आपकी आ गई यहाँ पे। R2 2 मैम। 2, R3 4 मैम। 4, करेक्ट। R4 8। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई दोनों को। यस मैम। बाकी जगह बाकी बिट्स पे क्या आ गया आपका? ओरिजिनल डेटा। सो ये हो गया 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब जो मैंने आपको बताया, अब हमें फाइंड करना है कि R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू होगी क्या? क्योंकि अब इन रिडंडेंट बिट्स की भी तो कोई वैल्यू होगी 0 या 1 में से, क्योंकि बाइनरी है ये। ठीक है, सो वो बता रहा था आपको कि R1 की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। R1 की वैल्यू डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ कि LSB में इन पोजीशंस में LSB में कितनी डिजिट है जिनकी वैल्यू है वो है 1। सो एक तो 1 हो गया आपका, एक हो गया 3। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो एक तो 1 को क्या मैं कैसे लिखती हूँ? 0 0 0 1, तो ये LSB 1 हो गया। ठीक है, फिर 3 की क्या हो गई? 3 हो गया आपका 0 0 1 1। ये हो गया 3। फिर आपका हुआ 5, दैट इज ये हो गया। यस मैम। फिर 7 ये हो गया। यस मैम। अब इसके अलावा कौन सी बिट हो रही है? 9 आपकी होती है। अगर मैं 9 देखूं सो 9 भी होगी ना, यस मैम। है ना? 10 होगी? नो मैम। देख चेक करके बताओ 10 11 होंगे कि नहीं? 11 होगी मैम। 11 होगी। यस मैम। 11 की क्या हो गई? 8 4 2 1, तो ये भी 1 हो गया। सो R1 जो डिसाइड करे, R1 की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड होगी 1 3 5 7 9 11 के बेसिस पे। सो अब आपको ये पता लग गया कि अगर आपके पास बेसिकली क्वेश्चन जो आएगा आपका, जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो आपका 8 बिट से ज्यादा का नहीं होगा, 7 बिट से ज्यादा का नहीं होगा बेसिकली। सो आपको सिर्फ कुछ बिट्स याद कर लेनी चाहिए कि R1 की वैल्यू 1 3 5 7 डिसाइड होगी। अगर नहीं याद हो रही तो आपको ये पता होना चाहिए। Ma'am, in fifth position there are 0, ma'am, हाँ not जी, 1. Fifth position there are 0, ma'am. 6th किसमें क्या? 6th पोजीशन पे 0 है। Fifth, ma'am, 5. 5 पे 0 होगा क्यों? 8 4 2 1। Okay, ma'am. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है इवन पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी कैसे चेक करने का मतलब क्या है? व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट कि इनकी वैल्यू जो इन पोजीशंस पे क्या क्या वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 पे क्या है? 1 पे कुछ भी नहीं है, 1 मुझे फाइंड करना है, सो 1 को मैं छोड़ सकती हूँ। 3 पे क्या है? 1। 5 पे क्या है? 0। 7 पे क्या है? 1। 9 पे क्या है? 1। और 11 पे क्या है? 1। राइट, कि जो हमने कोड वर्ड असाइन किया था उसी से हमने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यस मैम। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इवन पैरिटी फाइंड करनी है सो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मैम। 0 हो जाएगी। यस मैम। महेश आपके अकॉर्डिंग? इवन पैरिटी क्या थी कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो आपको क्या ऐड करना है? 0। सो इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू हो गई 0। सो नाउ व्हाट दिस मींस कि R1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। तो हमने R1 कैलकुलेट कर लिया, R1 की बिट हमने कैलकुलेट कर ली। सो R1 की बिट कैसे कैलकुलेट होगी कि आपको चेक करना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जो पोजीशन है वो 1 होना चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट R2। अब R2 कैसे कैलकुलेट करोगे?
R2 में क्या होता है कि जो आपका सेकंड पोजीशन है, मतलब अगर आपकी ये 4 पोजीशंस हैं, सो जो ये सेकंड पोजीशन है यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास 1 to 7 नंबर्स हैं, सो एक तो 2 पे हो गया 1, यहाँ पे 3 पे होता है, 6 पे होता है और 7 पे होता है। बाकी सब पे अगर आप चेक करो सो बाकी सब पे नहीं होगा, राइट? ठीक है। सो सेकंड पोजीशन क्या हुई आपकी, सेकंड पोजीशन हुई ये वाली पोजीशन, और इस पे आपको चेक करना है कि 1 है या नहीं है। सो अगर मैं बाकी सेम क्वेश्चंस की बात करूं जो हमने अभी किया है, अब मुझे फाइंड करना है पोजीशन R2 की, ठीक है। सो अब आप, मैं सेम चीज यहाँ लिख रही हूँ। पहले आप चलो R2 में मुझे बताओ कि R2 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी बिट्स आएंगी R2 के लिए। जैसे R1 के लिए LSB 1 थी तो हमने ये बिट्स ली थी, तो आप मुझे बताओ R2 के लिए कौन कौन सी बिट्स आएंगी। हमें चाहिए कि सेकंड पोजीशन जिसकी 1 हो। 2 मैम, एक तो 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 6, 2 3 6 7, ये तो आप याद कर लो, है ना। इसके बाद हमें देखना है, सब हम चेक करते हैं 8 आएगी नहीं, 9 भी नहीं आएगी, 10 को चेक करते हैं, 10 होता है 8 4 2 1, तो 10 हो गया। 11 11 हो गया आपका, अगर मैं लेती हूँ 8 4 2 1, तो 11 भी हो गया, राइट। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा कोड वर्ड दिया था दैट इज ऑफ 11 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई जस्ट राइट क्विकली यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर आपकी ये हो गया यहाँ पे R1 R2 R3 एंड R4। सो R1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या हमने कैलकुलेट किया था, R1 हमारा था 0। अब R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे बताओ R2 पे क्या कैलकुलेट, R2 की वैल्यू क्या आएगी, इवन पैरिटी लगा लोगे अगर। सो R2 तो आपको कैलकुलेट करना है, सो सेकंड पोजीशन तो आप छोड़ दो। थर्ड पे वैल्यू क्या है आपकी 1, सिक्स्थ पे वैल्यू क्या है 0, सेवेंथ पोजीशन पे वैल्यू है 1, 10th पोजीशन पे वैल्यू है 0 और 11th पोजीशन पे वैल्यू है 1। सो बताओ इवन पैरिटी से क्या वैल्यू आ गई R2 की, 1 मैम, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इस पोजीशन पे। सो ऑड नंबर ऑफ वंस से मुझे क्या बताना है, इवन नंबर ऑफ वंस। सो R2 की वैल्यू भी आ गई मेरी 1, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब हमें कैलकुलेट करना है, कौन सी बिट कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करनी है अपनी R4। मतलब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने R3 की जगह उसे R4 ही रखा है, so that position wise इन्होंने नाम रखा है। so it will be R1 R2 R4 R8, ठीक है। so ये आपका R4 हो गया, सॉरी R8 हो गया, और ये फोर्थ पोजीशन पे इसलिए R4 हो गया। so R4 का मतलब क्या है कि थर्ड पोजीशन जो है आपकी, थर्ड पोजीशन कौन सी हुई, अगर आपकी ये 3 पोजीशंस है तो ये थर्ड पोजीशन जो है वो कौन सी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो अगर आप 1 to 7 देखो तो 4 5 6 7 आपकी ऐसी बिट्स हैं जिसमें आपकी थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सो नाउ सेम यहाँ पे भी करके देखते हैं, सेम थिंग। सो R4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरी थर्ड पोजीशन क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सी बिट्स हो गई थर्ड पोजीशन वाली, एक तो 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, बाकी कौन कौन सी हुई, 8 होगी, नो मैम, 9 होगी, नो मैम, 10 होगी, 10 11 बोथ नॉट मैम, 10 11 भी नहीं होगी, नो मैम, है ना, क्योंकि ये 10 की ये वाली बिट 0 है और ये वाली बिट भी 0 है, और मुझे चाहिए थर्ड बिट क्या 1। तो ये सिर्फ 4 5 6 7 ही रहेंगी थर्ड पोजीशन के लिए। सो 4 5 6 7 का मतलब है कि 4 की वैल्यू क्या हो गई आपकी,
4 पे पोजीशन क्या है हमें पता नहीं, 5 पे पोजीशन है 0, 6 पे 0, 7 पे 1। सो जब 0 0 1 है सो इवन पैरिटी के लिए क्या हो गया 1 में। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ऊपर से तो नहीं उड़ रहा। नो में। सो R3 जो मतलब सॉरी R3 नहीं R4 ये वाली बिट क्या हो गई आपकी 1। ठीक है, सो हमने R1 कैलकुलेट कर लिया, R2 कर लिया, R4 कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है R8। R8 का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली अभी हम एक एक क्वेश्चन आगे बढ़े। तो R8 का मतलब कि हमारी जो फोर्थ पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, सो अब आप मुझे बताओ फोर्थ पोजीशन किस किस की होगी, इन सारी 1 to 11 में फोर्थ पोजीशन 1 किसकी होगी। 8 से शुरू करेंगे, 8 9 10 11 8 9 10 एंड 11। 11। सो अब बताओ इनकी पोजीशंस क्या क्या है इन सबकी। 8 पे तो हमें कैलकुलेट करने है, सो वील लीव इट। 9 पे क्या है 1, 10 की पोजीशन पे क्या है 0, 11 पे क्या आ गया 1। सो इवन पैरिटी के लिए क्या होगा मतलब 0। सो इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज, ये आपकी वैल्यू होगी 0। सो दैट इज कि आपकी जो पैरिटीज जनरेट हुई हैं वो क्या है, R1 की पैरिटी की वैल्यू क्या हो गई 0, R2 की वैल्यू क्या हो गई 1, R3 की वैल्यू सॉरी R4 की वैल्यू क्या हो गई 1 और R8 की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, सो अब जो आपका फाइनल जो कोड वर्ड जो कोड बनेगा, जो फाइनल कोड आएगा वो क्या हो जाएगा 101, फिर R8 की जगह आप क्या लिख दोगे 0। सो यहाँ पे आई जस्ट राइट 0, R8 की जगह 0 आ गया, R4 की जगह 1 आ गया, R2 की जगह 1 आ गया और R1 की जगह 0। सो ये जो बना आपका ये क्या बन गया फाइनल, जो आपको भेजना है सेंडर को। ये चीज क्लियर हो गई इतनी। ठीक है, अब जो डेसिमल, अब यहाँ पे देखो ये आपका कोड वर्ड था 101, एक मिनट राइट हियर 101 0 1010 1010 100 110। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं वो कि रिसीवर, ये रिसीवर को आपको भेजना था। ठीक है, बट रिसीवर को रिसीव हुआ ये, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, 6th बिट जो है आपकी 6th बिट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 6th बिट है 1 और यहाँ पे 6th बिट है 0। ठीक है, तो ये आपका एरर है जो आपको पता है। अब रिसीवर को चेक करना है कि क्या ये मेरा सही है या ये एरर वाला है। सो रिसीवर को ये पता है कि अगर 11 बिट्स का मेरा कोड वर्ड है, सो दिस मीन्स कि सेम 2 raised to power r greater than equal to m plus r plus 1 अगर वो करेगा, तो उसको ये पता है कि 11 मतलब कि मेरी मैसेज बिट्स हैं वो 7 है, 7 हो सकती है, तभी मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर मेरी r की वैल्यू 4 होगी तभी, क्योंकि अगर मैं r की वैल्यू 3 रख दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी इक्वेशन। सो उसको ये पता है कि रिडंडेंट नंबर ऑफ बिट्स जो है मेरी वो है 4। सो 4 के लिए वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करना शुरू करेगा कि वो पैरिटी कैलकुलेट करना शुरू करेगा। कैसे, रिसीवर कैसे कैलकुलेट करेगा, रिसीवर को ये पता है कि R1 पे मुझे कौन सी बिट्स लेनी है जिनकी जो ये वाली पोजीशन है, जो ये वाली पोजीशन है वो क्या है 1 है ना। यस मैम। सो रिसीवर ने ये वाली बिट ली, ये वाली पोजीशन ली, ये वाली पोजीशन ली, ये वाली पोजीशन ली, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये आपकी सारी पोजीशंस वो पोजीशंस हैं जिनकी जो लास्ट बिट है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो क्या है 1। फिर उसने कैलकुलेट की इवन पैरिटी। सो आप देखो 1 1 1 0 1 0, सो ये इवन पैरिटी हो रही है। नंबर ऑफ इवेंट्स, जो नंबर ऑफ 1 है वो इवन है, 1 2 3 4 इवन हो गए 1। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना, इवन हो गए ना 1 1 2 3 4 1s है। सो उसने क्या लिखा दिया कि R1 की वैल्यू क्या होगी मेरी 0। ठीक है, फिर उसने कैलकुलेट किया ऐसे ही R2 को। सो R2 पे हम क्या लेते हैं, सेकंड बिट 1 है।
सो सेकंड बिट जिनकी 1 है वो ये वाली बिट्स हो गई, जहाँ पे ये आपकी एरो दिख रहा है ना, ऐसे जहाँ से लाइन दिख रही है, ये आपकी वो बिट्स होगी जिनकी वैल्यू क्या है, सेकंड। अगर आप लिखना भी चाहो सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, आई राइट इट ओवर हियर। This is your position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, position 6, position 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, सो सिमिलरली अब यहाँ पे जिनकी सेकंड बिट 1 है वो क्या हो गई, 2, 3, 6, 7, 10 और 11। फिर उसने कैलकुलेट किया तो इवन नंबर ऑफ वंस है कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो उसने क्या लगा दिया, पैरिटी 1। फिर इसने यहाँ पे कैलकुलेट किया R4। R4 क्या कहता है, R4 के अकॉर्डिंग थर्ड बिट 1 होनी चाहिए। सो थर्ड बिट 1 किसकी हो गई, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की। सो यू विल कैलकुलेट 1, 2, 3, 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दी, पैरिटी 1। फिर यहाँ पे आपने कैलकुलेट की R8। R8 का मतलब कि फोर्थ बिट जो है आपकी 1 हो गई, सो यहाँ पे आपकी ये वाली बिट्स हो गई। फिर आपने कैलकुलेट की इवन नंबर ऑफ वंस है कि ऑड, सो इवन नंबर ऑफ वंस आई, सो पैरिटी उसने ऐड कर दी 0। क्लियर हो गई। अब अगर आप देखो तो ये R1, R2, R4, R8 बना क्या, R1, R2, R4, R8, इनकी वैल्यूज क्या है, R1 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू 1, R4 की वैल्यू 1 और R8 की वैल्यू 0। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनता है, डेसिमल फॉर्म में ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बाइनरी, किस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, 6 का। 6। ठीक है, सो इन पैरिटी की हेल्प से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि जो 6th बिट है, जो 6th बिट है उसमें एरर है, तभी तो एरर डिटेक्ट होगी, करेक्ट होगा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपका जो फाइनल पैरिटी बिट्स से जो वैल्यू आई, मतलब अगर सपोज ये होता 0 0 0 0, सो मतलब क्या हो जाता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0, और 0 तो कोई हमारी बिट है नहीं क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, पोजीशन 1 से। सो इसका मतलब अगर 0 रिजल्ट होता तो ये मतलब होता कि कोई भी एरर नहीं है, जो आपका रिजल्ट आया है वो एकदम करेक्ट है। बट आपका जो अगर पोजीशन जो है वो कोई और एरर, मतलब कोई और नंबर आ रहा है 0 के अलावा, सो दिस मींस कि उस पोजीशन पे एरर है। ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। तो ये आपका हैमिंग कोड है। अब एक काम ये करना है, मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पे कि आपको डेटा दिया है 1010, ठीक है, एक काम ये करना, मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगी सारी, आज आपका ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन पूरा हो गया। आई गिव यू दिस स्लाइड, आप इसको रिवाइज करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, इसमें आंसर भी मार्क कर रखा है मैंने, बट जस्ट ट्राई इट वंस योरसेल्फ। सीआरसी का क्वेश्चन है। ओके मैम। ठीक है, सो फिर कल हम नया टॉपिक जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। एनी अदर कुछ? नो मैम। ठीक है, सो एक बार पढ़ लेना, इसे पूरी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, और शाम की क्लास होगी कि नहीं मैं आपको मैसेज कर दूंगी, थोड़ा डाउटफुल है शाम की क्लास का, बट आपको असाइनमेंट मिल जाएगा एज अ वर्क, एज योर वर्क, तो आप वो आप कर लेना। ठीक है, ओके। सो आई कीप इट टिल हियर ओनली आज के लिए, और स्लाइड अभी मैं आपको भेज देती हूँ। सो कोई भी डाउट हो सो आप मुझे मैसेज करके पूछना। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।